Hi everyone, good afternoon. I hope everybody is doing fine on Sunday or Saturday afternoon, and we have a very good topic at hand, and we will try our best to do justice to this topic because whenever something associated with Hindenburg comes, it brings a lot of curiosity, anxiety, right? And normally we all connect this name with only one particular group, but let's see what's behind this. But prior to that, there are many questions which needs to be answered, so hopefully we'll drive the session in that direction. So initially I'll be asking these set of questions, and after that, if time will allow and if there would be any relevant questions on your part, we'll be happy to address. And meanwhile, comments are always open, so definitely you can type in your questions so that I can read that out. On the top of that, I would request, meanwhile, you guys can share the link to the spaces. And also, I have pinned one session which I did on transmission sector. So those who are keen can surely listen to that and also retweet if they find it useful because the good content should reach more people. So we'll wait for 1 or 2 more minutes and then we start with the session. Meanwhile, please don't hesitate if you are liking my work, and definitely you can share it with more people. Meanwhile, let me see. You want this guys this session in Hindi or English? You can simply type that in the comments, and I know there would be few of you who are comfortable both ways, but you can definitely write in the comments so that we know broadly where we should be focusing more, or shall we keep it bilingual, or the focus is on Hindi. So yeah. Hi Sandeep. Am I audible, Sandeep? Hey Prince, good morning. Yes, you are audible. Great. Good morning. Welcome again. So I was telling the audience about the broad structure, Sandeep. So guys, will be making it very simplified for you, right? All about Hindenburg and what it does, and how it can impact, and what we need to see, or is it any noteworthy to care about it. So there would be plenty of aspects which we would be covering. After that, we'll take your questions and speaker requests. So a very very basic question, Sandeep. ये करता क्या है, और I mean
what all we should know about Hindenburg at first place. Mhm. So, uh, first of all, I think the name is more popular in India than it is in USA in many ways, purely because anybody who should know kind of knows Hindenburg now, after what happened 2 years back. In fact, maybe um, with the whole Adani saga. But still, just to answer your question, it is naturally a US based short selling firm. The guy name is Nathan Anderson, and interestingly, they named this company based on for a name of a not so famous disaster which happened in 1937 in New Jersey. So they claim that this could have been avoided very easily. So it was a basically a German commercial passenger carrying airship which had a crash. So that for some other day. So they are doing quite a bit of things for many years now, and probably not many people in India appreciate it. That it is not like they're anti-India or focusing on India or emerging markets. They have done some amazing works in other companies also. One of the most famous one, the most successful one was also a company called Nikola. So that was essentially a firm which was becoming very popular in 2020 21. That was the peak of COVID era. Everyone was talking about EV stocks, tech stocks. So Nikola Corporation pay, they basically claim that company is making a lot of frauds, including fraudulent claims about its product, etc. So when the report came out, a stock dropped 40%. But more than a stock price, I mean, they can always drop and go up. That's less of a bother in any such case. What happened is obviously SEC did the inquiry, and then a lot of those allegations were found to be true. So it was a very good, successful outcome, even though that's not the main intent of this company, right? Then they also exposed another company called Medicare Advantage, but that company was not big. But was what was big that he they took on Chamath. I mean, some of you might know the famous Chamath, Sri Lankan guy. Many people think he's an Indian. He isn't. And Aldi Facebook guy, very popular, obviously a billionaire, but he did a lot of fishy things, especially during the entire SPAC saga. And he's obviously trolled majorly for that, even in financial, especially on Twitter, etc. But उसकी ये कंपनी उसने स्पैक से लाई थी मेडिकेयर एडवांटेज, उस पे उन्होंने अटैक किया. Then obviously Adani, we all know. But importantly, Adani say, I mean, Adani is rich, is powerful, but Carl Laken is no small chap either. So after, I mean, Adani was what, Jan 23. After 3 4 months, they went behind Carl Icahn Enterprises also, where they very interesting episode actually. उसमें दो क्लास ऑफ शेयर्स हैं और वो बार बार डिविडेंड पे करते हैं, उसकी वजह से उनकी नैव से कुछ 200 300% ऊपर प्राइस पे चलता था. तो उन्होंने एक शॉर्ट सेल पोजीशन लिया और उस पे अटैक किया, और उसके बाद उसकी प्राइसेस लिटरली 50% कोलैप्स की. सो दे हैव टेकन बिगीज. दे आर नॉट लाइक ट्राइंग टू पिक स्मॉल फिशेस. व्हाट दे विल डू दिस टाइम इज एनीबॉडीज गेस. इसके अलावा इन्होंने ब्लॉक पे किया था, काफ़ी फेमस कंपनी है. ड्राफ्ट किंग्स पे किया था. तो इंडिया फोकस नहीं है. There are other similar firms which historically focused on Chinese companies, because एक नेटफ्लिक्स में काफी फेमस डॉक्यूमेंट्री भी है कि जब पीक ऑफ बुल मार्केट चला था, तो काफी सारी चाइनीज फेक कंपनी जो कि डब्बा कंपनी थी उसको यूएस में लिस्ट करा दिया गया था. ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दोनों साइड पे रहते हैं, क्योंकि चाइना का रूल्स और रेगुलेशंस इतने कम थे कि कोई डिस्क्लोजर्स की जरूरत नहीं थी, और इंटरनेशनल लिस्टिंग नैस्डैक में या इवन एनवाईएसई में काफ़ी सारी हुई थी. तो उस पे यूएस से कोई बंदा जा करके चाइना में ग्राउंड रिसर्च करना उसके लिए काफ़ी टफ है. चाइना से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ सकती इतनी इजीली. So obviously these are fertile grounds for any kind of securities fraud. So a lot of other companies actually focused on short selling some of these Chinese stocks. I mean, have been a very famous theme for almost a decade now. Most of those Chinese stocks are anyway trading at crazy low multiples, so there is not much of a scope. So this is in nutshell what it is. Fantastic guy, Nathan Anderson. People should certainly follow him on Twitter. I know we a lot of us in India we try to see it from nationalist
फॉर आई मीन दैट्स अ वेरी रॉन्ग वे. अब हर चीज में कंट्री लगा देंगे तो फिर हमें मतलब that should be, you know, hallmark of any progressive nation or a progressive society or a progressive mind, is that you're open to listening critique, right? You can just call it fraud, you can do whatever, you can just discredit it, that's fair enough, but always be open to hear the negative things. We will talk about the pervert financial incentives, right? So naturally they are not doing charity, naturally they are not doing all this bona fide, they are doing all this to benefit from it. There are some legal aspects of what can be done, what cannot be done. इंडियन सिक्योरिटीज लॉज आर नॉट एज नुआंस्ड एज अमेरिकन. सो इंडिया के पार्लमेंट्स में ये इंडिया के सेटअप में अपेरेंटली इस तरह की शॉर्ट सेलिंग अलाउड भी नहीं है, इसीलिए ऑफशोर व्हीकल्स है, उस पर हम लोग बाद में आ सकते हैं. सो बट इन शॉर्ट प्रिंस, दैट इज व्हाट इट डज. तो संदीप, यू स्पोक अबाउट शॉर्ट सेलिंग, तो इसको मतलब इजी लैंग्वेज में समझे तो व्हाट इट इज ऑल अबाउट, और टॉकिंग अबाउट हिंडनबर्ग, आर दे अलाउड इन इंडियन jurisdiction? इस पे मैं बहुत मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, बट जब ये अदानी सागा हुआ तो सेबी ने बोथ साइड्स में ऑब्वियसली पॉलिटिकल सोशल प्रेशर था, एंड विदाउट गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स ऑफ इट, आई मीन वी ऑल अंडरस्टैंड, सो विल नॉट इलैबोरेट देयर. तो सेबी पे यू नो सुप्रीम कोर्ट का काफी प्रेशर था कि डू सम गुड जॉब, शो दैट व्हाट यू डिड, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट सेबी ने इंटरेस्टिंगली हिंडनबर्ग पे भी क्वेश्चनिंग की कि हु आर द बेनिफिशियरीज. तो वो तो जवाब देंगे नहीं, वो क्या करेंगे, तुम आपको भेजते रहो. तो लीगली अलाउड नहीं है, वरना तो आकर के इंडिया में सी अदानी में आप क्या कर लोगे, कैसे बिना यहाँ पे व्हीकल्स यहाँ पे शॉर्ट किए, जो कि मतलब आप कुछ ज्यादा कर नहीं पाओगे, थोड़ा बहुत निफ्टी कर लोगे, राइट? तो नेचुरली उन्होंने पहले कोई ऑफशोर ओटीसी डेरिवेटिव से पोजीशंस ली होंगी, मोस्ट लाइकली वही हुआ होगा, जिसमें बाद में अभी कुछ दिन पहले कोटक का भी नाम आया था उन व्हीकल्स में. तो नेचुरली वो डिटेल्स कभी नहीं आए हैं प्रिंस, बट आई कम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बैकग्राउंड. I can probably guess what structure they would have done. So something like TRS, total return swaps. उसमें बेसिकली क्या होता है, आप हेज फंड्स जाते हैं बड़े इंस्टीट्यूशनल ब्रोक इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के पास, और वो बोलते हैं कि मुझे 3 बिलियन अदानी इंटरप्राइज का शॉर्ट चाहिए, राइट? अब वो यहाँ पे कैसे शॉर्ट कवर करके देगा, वो उसकी है, वो तो रिस्क नहीं लेगा. मतलब लेट्स से गोल्डमैन सैक्स से आपने कहा, तो गोल्डमैन सैक्स का भी वो रिस्क नहीं लेगा, बट इस बात के लिए वो फंडिंग चार्ज करेगा 2% 3%. और इसमें क्योंकि ये कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव है, कैश सिक्योरिटीज की जरूरत नहीं है, यहाँ पर वो या तो लाइक टू लाइक करेगा, और जब हिंडनबर्ग को चाहिए होगा या कोई इनके पीछे हेज फंड्स लगे होंगे, तो नेचुरली इन्वेस्टमेंट बैंक को भी आइडिया लग जाएगा कि यार ये कॉम्प्लेक्स पोजीशन है, यू कैन नॉट हैव डेल्टा अनहेज्ड, सो दे विल डू समथिंग टू यू नो कवर फॉर दैट, आइदर फीचर्स और सम डिलीवरी एटसेट्रा. और इस तरह की पोजीशन एक दिन में बनाई भी नहीं जा सकती है, तो यूजुअली इट विल टेक 15-20 days टू बिल्ड दोस काइंड ऑफ पोजीशंस. तो कुछ स्ट्रक्चर्स लिए जरूर होंगे, तभी उतना किया है, जिसपे हिंट भी किया था अभी से भी रिपोर्ट में. बट क्विक इंस्ट्रूमेंट किसी के पास नहीं है, मतलब इंडियन उसमें तो है ही नहीं, आप शॉर्ट कैसे करोगे, अलाउड ही नहीं है. फीचर्स आप शॉर्ट कर सकते हो, दैट्स इट. वो भी अगर मोस्ट लाइकली अदानी के मैक्सिमम स्टॉक्स तो एफएनओ में थे भी नहीं उस समय, और अभी भी नहीं होंगे, तो हाउ वुड यू इवन शॉर्ट. इनफैक्ट इंडिया के काफ़ी सारे पॉपुलर नेम्स जो कि बैक्ड बाई biggies हैं, I mean some of those, you guys can guess which stock I'm talking about, they don't come in FNO because of those reasons, because then short seller can attack. तो फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू वो इसको कैसे देखें, और इसमें भी लाइक वन इज ट्रेडर सेगमेंट एंड द अदर इज इन्वेस्टर, तो हाउ यू सी कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और कैसे उनको मतलब अपने आप प्लेसमेंट, और इट्स नॉट समथिंग टू वरी, कैसे क्या रहे? So I think first time was more of a shock value, and they obviously picked Adani Group, and it was such a big scathing report कि जब तक लोग figure out करते तब तक काफी volatility आ चुकी थी, and this naturally they had lot of fault lines also, right? एक चीज इस सब में आई थिंक एनी सेन माइंड विल अप्रिशिएट दैट आफ्टर दैट अटैक अदानी ग्रुप बिकेम मच मच स्ट्रॉन्गर, राइट? सो जितने भी उनके लूज एंड से लीगल इलीगल, अब जो भी आप नुआंसेस में जाना है, उन्होंने सब मोस्ट ऑफ दोज कवर किए, इंक्लूडिंग स्ट्रेस्ड बैलेंस शीट, इंक्लूडिंग नो सम ऑफ दीज डबियस शेयर होल्डर्स एटसेट्रा. तो ऑल दीज नेगेटिव व्यूज आर ऑलवेज वेलकम.
आई मीन एज लॉन्ग एज इट डजंट किल यू, राइट? तो अब निकोला के केस में आउटराइट फ्रॉड है तो वो बंद ही हो जाएगा। बट इफ इट इज अबाउट अ कंपनी विच हैज सर्टेन एंगल्स, एंड जिस तरीके की हिंडनबर्ग का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अनलाइकली दे विल पिक अ वेरी स्मॉल कंपनी. It should be, ideally a big company or a big segment. And someone was writing in WhatsApp कि SME के ऊपर आएगा. Don't think of so grand. I mean that will be shock of my life. And not to say it is not plausible, or not to say in SME में problem है, but I'm saying ticket size इतनी छोटी है कि who cares kind of a thing. US का short sale investor SME के बारे में क्यों बात करेगा Indian SME के? But it has to be something big, and I mean, don't get surprised if they come up with a follow up of on the Adani Group itself. तो whoever is vulnerable उसी पे ही बार बार अटैक करेंगे. ट्रेडर क्या कर सकता है वो मैं मतलब लिटरली किसी को नहीं पता है. ये सब हिंडसाइट में आकर के लोग बोलते हैं. QIP कैंसिल हुआ था 1300-1400 पे, सब लोग कोई नहीं उठाने को तैयार था. एक बार जब GQG ग्रुप इन्वॉल्व हुआ उसके बाद से ही वापस आया ना. मतलब ऐसा नहीं है, ये सब हिंडसाइट में सबको बोलना आसान है और हर बार ऐसा नहीं होता है. फॉर एग्जांपल, मैं इसको इनफैक्ट प्रिंस थोड़ा पीछे जाते हैं तो नवीन जिंदल ग्रुप पे काफी शोर मचा था जिसमें जी न्यूज वाला सागा था. फिर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पे कैनेडियन वेरिटास करके कोई कंपनी थी, उसने बीच में 2000 से 2015 2010 से 2015 के बीच में 3-4 रिपोर्ट्स निकालनी थी. फिर उस पे काफी इंडिया में केसेस भी हुए थे कि उस कंपनी को दबाने की कोशिश की गई थी. वो लोग डर गए और ऑब्वियसली बंद कर दिया उन्होंने. बट आप जाके देखना गूगल में भी, मैं बाद में थोड़ा सर्च करके ट्वीट मार दूंगा. वो सब ने उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बैड कंपनीज पकड़ी थी और वो सारी की सारी बंद हुई बाद में, राइट? तो ऐसा नहीं है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो ये बोल रहे हैं, मतलब बिना बोलते हैं ना कि देयर कांट बी ए स्मोक विदाउट फायर. दे कांट जस्ट कम अप डू अ सच काइंड ऑफ एक्सपोजे ऑन इन्फोसिस. मतलब इन्फोसिस में भी कमियां होंगी बट इतनी नहीं होंगी ना कि एक एक्सपोजे बन जाए. तो पहले तो आप ये मान के चलिए, आप इसमें नेस्टलिस्ट फॉरवर्ड करिए या हुर्रा करिए कि नीचे आने दो हम ले लेंगे. आई मीन जिंगोइज्म की कोई एंड नहीं है ना. आप किसी भी बात पे लगा सकते हो. सुबह सुबह आप नेशनल नेशनल फ्लावर के टॉपिक पे भी आप जिंगोइस्ट हो सकते हो. बट लॉजिकली बात करोगे तो जिस भी कंपनी के बारे में बोल रहे होंगे कुछ तो मेरिट होगा. नाउ द क्वेश्चन इज वेदर यू कैन प्रूव इट लीगली, वेदर यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, वो डिफरेंट बात है. आउटराइट फॉल्स क्लेम्स तो नहीं हो सकते हैं. तो एज ए इन्वेस्टर अगर वो मेरे पोर्टफोलियो कंपनी की है तो इट इज ऑलवेज गुड. क्यों? क्योंकि अच्छा हुआ किसी ने बता दिया. क्योंकि फाइनेंशियल वर्ल्ड में इंसेंटिव्स इतने परवर्ट हैं कि सब कोई आपको पॉजिटिव बताना चाहता है. ह्यूमन बाइसेस, लीगल इलीगल, पंपिंग नॉन पंपिंग, ह्यूमन नेचर है. मतलब वॉट एवर आई हैव नेचुरली मैं उसके बारे में अच्छा ही सोचूंगा, तभी मैंने स्टॉक लिया है. मैं खुद भी अपने स्टॉक्स के बारे में हर समय आई एम ऑलवेज मूनिंग अबाउट इट, unless someone comes and tells like Sandeep you are misreading it, right? तो एज एन इन्वेस्टर वी शुड ऑलवेज वेलकम. व्हाई नॉट? एटलीस्ट क्लीनिंग हो जाएगी ना, जिसको मेडिकल पार्लेंस में बोलते हैं कि एवरी फीवर इज गुड फॉर बॉडी बिकॉज देन इट जस्ट क्लीन्स अप थिंग्स. राइट. तो संदीप, इसमें दो एस्पेक्ट का मैं डिफरेंशिएशन जानना चाहूंगा. बेसिकली शेयर होल्डर एक्टिविज्म और जो ये शॉर्ट सेलर्स हैं, हाउ दे आर डिफरेंट. और सेकेंडली मतलब आई मीन देर इज अ फेयर चांस दैट उनकी भी इंटेंशन गलत हो सकती है. इट कुड बी लाइक दे आर डूइंग इट फॉर राइट रीजंस एंड पॉसिबली किसी एक ग्रुप को टारगेट करने के लिए. आई मीन वो भी हो सकता है कि प्लांटेड भी हो सकते हैं. इट कुड बी बोथ वेज, राइट? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है. इनफैक्ट कोई बड़ी बात नहीं है कि अ लॉट ऑफ इट माइट बी लेफ्ट विंग फंडेड. इनफैक्ट लास्ट टाइम भी बहुत सारा राइट विंग चैनल्स में आया था कि इसके पीछे सोरोस फाउंडेशन हो सकता है, इसके पीछे इंडिया का लेफ्ट लिबरल कॉकस ने इन्फॉर्मेशन तो दी थी. क्योंकि जो रिपोर्ट्स थी, मतलब यहाँ पे तक रूमर्स थी कि आई मीन, एंड सिर्फ पॉइंट इज उन बातों को बात करना केवल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है अपने लेवल पे. काउंटर बिजनेस ग्रुप्स एटसेट्रा, ऑल दोज आर पॉसिबल एंड बिल्कुल पॉसिबल है, राइट? हम इंटेंट पे और इंसेंटिव्स पे तो हम बाद में जाएंगे, राइट? पॉइंट ये है कि इन्फॉर्मेशन कैसी सही है कि गलत है. तो सब चीज पॉसिबल है. इनफैक्ट आई पर्सनली फील very much possible that it is part of a wider social economic attack on Indian political class. Last time was it was surely time to perfection. This time also it might be something. Right now we Indian ruling class is little vulnerable, Bangladesh and all that. So काफी ज्यादा है वो. बहुत प्रॉब्लम क्या है कि उसको बिना पैशन के वो डिस्कशंस किए नहीं जा सकते प्रिंस. तो मैं मतलब आई हैव लॉट ऑफ पॉइंट्स बट आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक ऑन ट्विटर.
क्योंकि वो बहुत ही पैशनेट हो जाता है और फिर दोनों साइड से पीपल जस्ट गेट राइल्ड अप. सो आई एम नॉट अफ्रेड, बट आई एम जस्ट डोंट वांट टू spend my Saturday morning on a public forum to do those discussions. So incentives for sure there can be so many, but let's assume just for now that they have financial incentives. एंड जरूरी नहीं है कि वो जिसको शॉर्ट कह रहे हैं, हो सकता है इस बार इंडिया का क्या है अभी रिटेल और सिप मनी इतना ज्यादा लगा है, अगर पब्लिक ने हुर्रा कर दिया कि लो लेट्स डू कोला बड़ी दी शॉर्ट बोल रहा है चलो लॉन्ग करते हैं, राइट. यू कैन ऑलवेज डू अ गेम स्टॉप ऑन एनी स्टॉक, राइट. इनफ लोगों ने एक बार डिसाइड कर लिया कि नहीं ऊपर लेके जाना है तो ऊपर चला जाएगा. दैट्स द ब्यूटी ऑफ ए स्टॉक मार्केट, इट डजंट मैटर, वैल्यू इज जस्ट परसेप्शन, राइट. तो लेकिन आपका जो पहला क्वेश्चन है वो प्रिंस काफी गुड है कि हाउ आर द डिफरेंट फ्रॉम एक्टिविस्ट शेयर होल्डर. गुड गुड वर्ड यू हाईलाइटेड. सो एक्टिविस्ट शेयर होल्डर्स थोड़ा सी डिफरेंट है. वो शॉर्ट सेलर भी हो सकते हैं, बट मोस्टली एक्टिविस्ट शेयर होल्डर्स ये यूएस इंडिया में एक बहुत बड़ा क्लास है. और मेरी एज अ वेरी स्मॉल शेयर होल्डर रिटेल इन्वेस्टर मेरी एक डिजायर है कि अगले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में हमारे कुछ मार्क्यू इन्वेस्टर उस लेवल की इन्वेस्टिंग करें जिसमें एक वो बैडली रन कंपनीज में पोजीशंस लें 2%, 5%, 10%. Then they start writing open letters to board demanding certain restructuring, certain improvements in corporate governance, certain changes in business strategy, and then they create a value out of it. So it's a very good uh, activist shareholding, right? In fact, micro cap investing में most of the so-called big investors do that part, right? इयान कैसल का आप पढ़ोगे जितना भी, काफी लोग आप लोग फॉलो करते होगे जो यूएस में माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग का इस समय ब्रांड एम्बेसडर है. ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट दैट. बट इंडिया में तो अलग ही लेवल पे हो रही है माइक्रो कैप्स में, जहाँ पे लिटरली जिनके पास भी 2%, 3%, 5% है, दे आर वेरी एक्टिवली गाइडिंग टू द ग्रोथ कैपिटल जिसको बोलते हैं वीसीपी के सेंस में. तो लिस्टेड कंपनीज में ऑब्वियसली स्ट्रक्चर्स हैज टू बी लिटिल डिफरेंट, नॉन पब्लिक, पब्लिक इंफॉर्मेशन, हाउ मच यू कैन गेट इन्वॉल्व, दोस थिंग्स अपार्ट. बट एक्टिविस्ट शेयर होल्डिंग इन यूएस इज नॉट इवन माइक्रो कैप, इट इज ऑल बिग कंपनीज. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को याद होगा कि गूगल में, अच्छा उसमें दैट इज प्योरली फ्रॉम शेयर होल्डर रिटर्न्स पर्सपेक्टिव. सो शेयर होल्डर मैक्सिमाइजेस वैल्यू मैक्सिमाइजेशन में maximum times obviously other stakeholders gets rough cuts, so there are counter arguments ki under pressure of such say activist shareholders, companies do massive cost cutting which often means job cuts and those sort of things. So उस तरह के सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स को भी साइड रखते हैं, प्योरली फोकसिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव. एक्टिविस्ट शेयर होल्डर्स आर वेरी गुड. फॉर एग्जांपल आईटीसी में जो उन्होंने डिमर्जर नहीं किया, उनके जो टॉप मैनेजमेंट है आज भी वो होटल मैनेजमेंट चलाना चाहते हैं. आईटीसी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि कम कंट्रोवर्सी होगा, बाकी कंपनीज के बारे में बात करूंगा तो काफी है. तो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज में बहुत सारा गवर्नेंस स्टैंडर्ड इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन ना ही किसी बड़े इन्वेस्टर्स की हिम्मत है, और फाइनेंशियल मीडिया तो क्या ही बोलेगा. तो इंडिया में मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से हो सकता है, बट नेवर से नेवर. 15 years, 20 years में मे बी विल बिकम एज गुड एज अमेरिकन सिस्टम्स आर. बट दे Right. आर डिफरेंट फ्रॉम शॉर्ट सेलर. शॉर्ट सेलर केवल एक पॉइंटेड पोजीशंस लेते हैं कि शॉर्ट सेलिंग की कॉस्ट होती है व्हाट वी कॉल बोरो कॉस्ट. यू हैव टू बोरो द शेयर्स एंड देन शॉर्ट इट, राइट. और दूसरा क्या होता है कि अगर आप कैश सिक्योरिटीज के टर्म्स में देखिए तो यू कैन नॉट होल्ड इट फॉर एवर, राइट. क्योंकि आपको 3%, 4% अगर इलिक्विड स्टॉक है, समटाइम 7%, 8%, टेस्ला एट 1 पॉइंट है 12%, अलीबाबा वगैरह 15-20% पे भी गए थे एट टाइम्स. तो जब शॉर्ट सेलिंग की कॉस्ट इतनी ज्यादा है तो अनलेस यू आर रिचर, मेक बेटर प्राइस मोर देन योर कॉस्ट ऑफ शॉर्ट सेलिंग, हाउ विल यू मेक मनी. तो मैं मतलब वैसे टेस्ला वगैरह के शॉर्ट्स, इनफैक्ट बिल गेट्स कैरिड अ बिग शॉर्ट ऑन टेस्ला फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो मल्टी ईयर एक्चुअली. तो वो बहुत रेयर है. ये जो हिंडनबर्ग वगैरह की रिपोर्ट है मैक्स से मैक्स मुझे लगता है कि 15 दिन, 20 दिन, एक महीना. तो नेचुरली वो बहुत फोर्स के साथ आ रहे हैं, एक्सपोज के सेंस में आ रहे हैं और क्विकली पैसा बनाना चाहते हैं. दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्टिविस्ट शेयर होल्डर, जहाँ पे 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, मेनी टाइम्स, मेनी ईयर्स इज वेरी कॉमन. वेरी रेयर फॉर दोज एक्टिविस्ट शेयर होल्डर्स टू take a position and then get out in 15 days or 30 days. Right. And the example you gave of ITC, similarly in ICCI Securities also something is going on. So that is also like covered under the umbrella of stakeholder activity, right?
आईसीसीआई पे मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं इनफैक्ट उनमें से कई लोगों से मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी इन्वॉल्व हूँ। आई मीन दिस गाय मनु इज डूइंग अमेजिंग जॉब क्वांट में, मतलब दे लिटरली डिजर्व अप्लॉज, मतलब स्टैंडिंग ओवेशन दे डिजर्व। सैड पार्ट इज प्रिंस, I have a feeling that I have a very sizable position by retail standards. My 7% of my portfolio is in ICICI Securities, and I'm also, I'll not use word victim or sufferer, but basically at the short end of the entire saga. I didn't take a public stance or even a legal proceeding stance, जो भी चल रहा है, purely because I'm also ICICI Securities for last 17 years, and plus ICICI बैंक सेटअप में रहा हूँ, तो एंड देयर आर सम एडिशनल रीजंस, बट जो भी वो हुआ है बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। मतलब बोलते हैं ना कि, एंड एक भी फाइनेंशियल मीडिया उसके बारे में बात नहीं करेगा। ये रिकॉर्डेड सेशन है, मुझे कोई मतलब आई एम नोबडी, बट मैं बहुत ज़्यादा नहीं उस पर बोलना चाहता हूँ, बट ऑल आई कैन से इज एक्सट्रीमली सैड द वे इंटायर अफेयर्स आर। सिंपल सी बात है कि जो इस पे मतलब प्रिंस, उस टॉपिक पे बात की करने के लिए हमें बिना, जब तक हम प्रॉक्सी ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, सी हु आर म्यूचुअल फंड्स का खुद का तो पैसा नहीं है ना, वो पब्लिक का पैसा है। तो उनकी फिडेंशियरी ड्यूटी है कि अपने इन्वेस्टर से पूछें। प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टर्स को कुछ हवा ही नहीं है इस तरह के कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट्स में, राइट? तो फिर आप जाते हो रिटेल पे। अब रिटेल में वो काफी बड़ा टॉपिक है एक्चुअली प्रिंस, उसमें जो डिलिस्टिंग नॉर्म्स है सेबी मॉडिफाई कर रही है। मैं तो कंफर्टेबल नहीं हूँ उस पे फेस करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि रेगुलेटरी प्रेशर भी आ सकता है। Right. बट उसमें काफी सारे सेट्स हैं, मतलब इट्स जस्ट नॉट वन वन स्मॉल एस्पेक्ट, राइट? जो डिलिस्टिंग है वो इंडिया में ऑब्वियसली काफी आर्केइक रूल्स हैं, और काफी सारा मिसयूज हुआ है, जिसमें शेयर होल्डर्स ने कंपनीज को लिटरली लाइक फोर्स किया 5 गुना 10 गुना प्राइस देने के लिए। दैट्स वन एंड ऑफ इट, but the reality is ICICI Securities was surely undervalued at least by 50% by any normal standards, current comparables, etc. 6% dividend yield, doing very well, etc. etc. सो उसमें जितने भी इन्वेस्टर्स रिटेल हैं वो बिल्कुल रिटेल वाले नहीं है, सब नुआंस कॉर्पोरेट स्टाइल के इन्वेस्टर्स हैं, एंड देयर फीलिंग वाज दैट दे वर getting at least 40-50% lower than what they should have got. But more than money, many of them got riled up with the way ICICI Bank handled it, and that David versus Goliath sense में they're fighting. देर आर सम होप्स, केस एनसीएलटी में भी गया है, कोर्ट्स में गया है। मीडिया उसको बारे में कभी भी कवर नहीं करेगी, आपको पता है, बट काफी कुछ डेवलपमेंट चल रहा है। अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो ऑलमोस्ट लाइक ए नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री है इन इटसेल्फ, एंड सम अमेजिंग इंडिविजुअल्स आर डूइंग दैट जॉब। सो ऑल आई कैन से, आई मीन, ब्रेवो, ब्रावो। Great. So another important aspect, something which is like we all receive different research reports. Some have subscribed or some get it otherwise also. So why most research analysts avoid sell rating? Is there any structural reason for such positive biases? And how you see it? गुड पॉइंट, एक्चुअली वेरी गुड पॉइंट। ये इंडस्ट्री में, मेन बोर्ड में जो फाइनेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको सबको पता है, बट इन्वेस्टर्स को ये एक बेसिक बात नहीं समझ में आती है कि जो इक्विटी रिसर्च है ये घाटे का सौदा है किसी भी कंपनी के लिए। इट्स अ कॉस्ट सेंटर, इट्स नॉट अ रेवेन्यू सेंटर। आप फॉर एग्जांपल एसमी में ही रिसर्च क्यों नहीं आता है? कोई भी बंदा रिसर्च कर देगा, अ, और वो 10,000 रुपए भी चार्ज करने की कोशिश करेगा, तो एक दो बंदे लेंगे, फिर उसके बाद वो पीडीएफ रिपोर्ट शेयर होगी। आई मीन फॉर एग्जांपल सोवरेन या कोई भी करे, राइट? अच्छा रिसर्च है, बुरा रिसर्च है, बैड है, गुड है, बायस्ड है, उस पे नहीं जाते हैं। रिसर्च के लिए कोई पैसे नहीं पे करना चाहता है, रिटेल भी नहीं पे करना चाहता है, एंड नेचुरली इंस्टीट्यूशंस भी नहीं पे करना चाहते हैं। तो इसको इंस्टीट्यूशंस को यूजुअली इसको सॉफ्ट डॉलर्स बोला जाता है। जैसे आप नोटिस करिए तो आईसीसीआई सिक्योरिटीज की रिटेल की एक अलग रिसर्च यूनिट है, इंस्टीट्यूशंस की एक अलग रिसर्च यूनिट है। तो प्रिंस बेसिकली फाइनेंस में काफी लोगों को यहाँ पता है, लॉट ऑफ गुड गाइज आर ऑन लिसनर एंड स्पीकर मोड, बट स्टिल फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल, फाइनेंस की इंडस्ट्री को, इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री को यूजुअली दो पार्ट में बांटा जाता है, बाय साइड और सेल साइड। बाय और सेल, बाइंग एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज के सेंस में नहीं है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सर्विसेज के सेंस में है। तो हु आर द बाय साइड्स आर एएमसीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, basically mutual funds, pension funds, or anybody who's managing money, right? And who are the sell side? Sell sides are basically brokers,
एंड डीलर्स, राइट? डीलर्स तो इंडिया का उतना बड़ा मार्केट नहीं है, डेट मार्केट है, बट इक्विटीज में ब्रोकर्स। सो ब्रोकर डीलर्स जो होते हैं वो सेल साइड कहते हैं। उनको सेल साइड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सर्विसेज सेल कर रहे हैं। अब ये क्या सर्विसेज सेल कर रहे हैं? एग्जीक्यूशन सर्विसेज और ब्रोकरेज सर्विसेज, राइट? बट एंड सम इन सम केसेस डीलिंग आल्सो, मार्केट मेकिंग आल्सो। जैसे आपको कुछ ऐसे बॉन्ड सीरीज लेनी है तो वो दूसरे क्लाइंट्स के पास जाएंगे, दे विल फाइंड इट आउट फॉर यू। Just for nuances, difference between dealer and a broker is broker never takes inventory, dealer takes inventory risk. So he will buy it from ex client, keep it for 3 days, 4 days, and then find out another buyer, right? So that's dealer, and that's why dealers are also sometimes known as market makers. And sellers never takes inventory risk. He just provides a platform. He facilitates the interaction between two set of people. So in doing so, just to make themselves a better seller of these services, they also provide research, right? तो इस रिसर्च को बोलते हैं हम सेल साइड रिसर्च। दैट इज व्हाट वी सी मेनी टाइम्स इन व्हाट्सएप सर्कल, टेलीग्राम, इंटरनेट, यू नो, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट वो रिसर्च किसके लिए मेंट है? वो है बाई साइड क्लाइंट्स के लिए। और बाई साइड की खुद की इन हाउस यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं बाई साइड रिसर्च। तो जैसे फिडेलिटी है, या कोई भी म्यूचुअल फंड है, या कोई भी हेज फंड है, या कोई फैमिली ऑफिसेज है, तो उनके खुद के रिसर्च एनालिस्ट होंगे, एक या दो या तीन या पांच या 10, राइट? वो इन हाउस रिसर्च है। उसका काम कंपनी फोकस रिसर्च भी हो सकता है। उनका काम ये भी हो सकता है कि सेल साइड की जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसको एग्रीगेट करके एक समरी इन्वेस्टमेंट थीसिस अपने इन्वेस्टमेंट कमेटी को प्रेजेंट करना है, राइट? रिसर्च नीड नॉट टू बी जस्ट पब्लिकेशन, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ रिसर्च। तो अब आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है कि क्यों सब लोग हमेशा बाई रेटिंग देते हैं, हमें सेल रेटिंग नहीं क्यों नहीं दिखती है? तो इसमें एक पॉपुलर जोक है कि अगर स्ट्रांग बाई बोला तो बाई करने का है, बाई बोला तो होल्ड करने का है, होल्ड किया तो सेल बोलना है, और सेल करने को बोलना है तो इट्स ऑलरेडी टू लेट। तो अगर आप कभी भी रिसर्च रिपोर्ट देखेंगे, आप सिंपली ब्लूमबर्ग में जाइए, कोई भी अपना पॉपुलर स्टॉक उठाइए, अगर आपको 35-40 रिसर्च रिपोर्ट दिखेंगी तो उसमें से 90% बाई रेटिंग होंगी। एंड दैट स्ट्रक्चरली इज नॉट पॉसिबल इवन इफ यू आर टॉकिंग 1 year आउट फॉरवर्ड सेंस में। मार्केट्स आर ऑलवेज फेयर वैल्यूड, सो एटलीस्ट 60-40 तो स्प्लिट होना चाहिए। बट वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि इंसेंटिव्स ऐसे होते हैं। अब इसमें दो चीज सोचिए, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचते हैं कि मान लीजिए कोटक सिक्योरिटीज का मैं सेल साइड इंस्टीट्यूशनल रिसर्च एनालिस्ट हूँ ऑटोमोबाइल का। मैंने कहा कि मेरे ये 3-4 बड़े क्लाइंट्स हैं जिन्होंने फॉर एग्जांपल आयशर मोटर्स में बड़ी पोजीशन ली है। मैंने एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की सेल साइड की, मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छा काम किया। ऊपर से क्लाइंट का फोन आ जाएगा, किस लड़के ने ये रिपोर्ट डाली है, क्यों सेल किया, उसको ज्यादा पता है, 23 साल का लड़का है, वो कह रहा है सर सेल है, मैं 10 साल से ये लेके बैठा हूँ, 5 बिलियन मैनेज कर रहा हूँ, डिड यू चेक विथ मी? इवन योर क्लाइंट्स विल प्रेशराइज यू फॉर पब्लिशिंग अ नेगेटिव रिपोर्ट, राइट? फिर दूसरा चीज आइए, ये जितने भी रिपोर्ट्स बनती हैं इसमें बिना मैनेजमेंट एक्सेस के आपको बेटर व्यू मिलेगा नहीं, ठीक है? समझ में आएगा नहीं धंधा क्या चल रहा है। आपने 2 बार सेल किया, उसके बाद मैनेजमेंट ही कॉल उठाना आपका बंद कर देगी, तो वहां से प्रेशर है। फिर आपकी सेल साइड का भी प्रेशर रहेगा। तो इतना ज्यादा प्रेशर है रिसर्च एनालिस्ट में कि वो सेल तो लिखना उसके लिए बहुत ही टफ है, अनलेस इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रांग हैं। अच्छा, वो कई बार गुड हैंड बैड हैंड भी खेलते हैं। तो जिन कंपनीज की स्ट्रांग कवरेज नहीं है उनके पास, वो ऐसे ही सेल डाल देते हैं कि चलो कल को रेगुलेटर्स को दिखाने को हो जाएगा कि मेरी 100 रिपोर्ट्स हैं तो 100 में मैंने 7 या 8 सेल भी दे रखी हैं, तो बहुत ही सॉफ्ट सेल होगा। बट इन जनरल आप ये मान के चलिए कि सेल रिपोर्ट बहुत रेयर होंगी, और अगर आ रही हैं तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ना चाहिए कि क्या कह रहा है। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, ह्यूज बायस, ह्यूज, नॉट इवन अ स्मॉल बायस। एंड इसमें प्रिंस एक और एंगल है, इश्यूअर पेड रिसर्च और नॉन इश्यूअर पेड रिसर्च। तो जितनी भी स्मॉल कैप्स होते हैं, मिड कैप्स होते हैं, जो टियर 3 ब्रोकर से प्रभुदास लीलाधर और इस तरह के नाम नहीं लेते हैं अभी, वो सब इश्यूअर पेड होते हैं। नीचे आप देखिएगा तो उसमें लिखा रहेगा फुटनोट्स में, और वो भी लॉजिकल है, क्योंकि आप एक छोटी कंपनी है 5,000 करोड़ की, उसके प्लांट हैं भिलाई में, झारखंड में। एक बॉम्बे की बंदा है जिसका पैकेज है 15 लाख 20 लाख, सीएफए किया हुआ है, टियर 2 से एमबीए किया हुआ है, वो अपनी सैलरी वैसे भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, उसका ओनर कह रहा है यार इस लड़के को फायर करते हैं। अब वो बोलेगा कि मुझे 2 लाख का ट्रैवल बजट चाहिए, 10 दिन का मैं विजिट करके आऊंगा, कहाँ से निकल के आएगा 2 लाख रुपए? तो कंपनी खुद ही फंड करती है प्लांट विजिट्स, ये सब, ठीक है? कई बार कंपनियां ये भी कहती हैं कि आपकी कवरेज की जो कॉस्ट है आप बता दीजिए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, लेकिन आप उसमें रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करिए, स्टार्ट कवरिंग इट। एंड दिस आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट पर वर्ड रिपोर्ट्स जिसमें आउटसाइड आउटराइट फ्रॉड है, पैसे दे करके आपने बाई ले लिया है।
बट इवन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन आपको कोई 2 लाख रुपए दे रहा है, 5 लाख रुपए दे रहा है एक रिपोर्ट के लिए, तो उसकी बेसिक एक्सपेक्टेशन है कि उसकी कंपनी के बारे में आप बाई ही लिखोगे ना। मतलब वरना कोई क्यों तुमको बुला करके फ्लाइट का टिकट देगा, एंटरटेन करेगा, 3 दिन आपको ट्रैवल कराएगा। तो ये सारे अनसेड इंसेंटिव्स स्लैश लिमिटेशंस हैं सिस्टम की, जिसको एज ए इन्वेस्टर हमें अप्रिशिएट करना है, सिनिकल होना नहीं है। मतलब एज ए मेच्योर पीपल वी शुड अंडरस्टैंड दैट दीज आर लिमिटेशंस। इस लिमिटेशंस को अपने कॉग्निजेंस में लेकर के अपनी एनालिसिस करनी है। इसको जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है कि ये तो गलत है, ये वो है। दैट आई मीन वी कांट चेंज वर्ल्ड, वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड इज एंड देन ट्राई टू प्रॉब्ली मनूवर अराउंड इट। बैक टू यू प्रिंस। तो इस पे सर अगर कुछ मतलब ब्रॉड कंक्लूजन निकालें हैं, तो आर रिसर्च रिपोर्ट यूजफुल और इट्स मोर और लेस अ स्टेल इंफॉर्मेशन, और आल्सो देयर आर न्यूएंसेस कि कहाँ से रिपोर्ट आ रही है। और So first of all, if you're trying to trigger into a decision from a report, then obviously it is a bad hand. तो जो भी सीजन इन्वेस्टर्स आपको पता है कि वो रिपोर्ट्स के बेसिस पे मतलब होता है ना कि जब आप रिटेल होते हो तो कई बार आपको लगता है अरे मॉर्गन स्टैनली ने बोला कि एचडीएफसी में बाय 2200, राइट। अब एचडीएफसी 1600 पे है, 1% का पॉप आ जाएगा क्योंकि बहुत सारे रिटेल उसको, पहली बात वो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को जा चुकी होगी रिपोर्ट, राइट। 5 दिन पहले इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के पास होगी, बाद में मार्केट में रिलीज होगी, तो पहले ही स्टेल है, पहले खास क्लाइंट्स को दिया जाएगा जिसके लिए वो है, ठीक है। ऐसा इंटेंशनल अनइंटेंशनल उस पे नहीं जाते, बट वो लैग तो रहेगा जब तक वो पब्लिक के पास इनफॉर्मल चैनल से लीक होकर के रिपोर्ट आ रही है। उनके लिए तो रिपोर्ट बनी भी नहीं थी, तो नेचुरली आपको 10 दिन बाद मिल रही है, तो जिसको पोजीशन बनानी है उसने बना ली है, राइट। आप उसके फॉलो अप एक्शंस को हैंडल कर रहे हो। तो अगर आपको क्विक ट्रेडिंग एक्शन के या क्विक पोजीशन के इंटेंट से आप उन रिपोर्ट्स को पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली बहुत मोस्टली यू विल लूज मनी देन मेक मनी बाय डूइंग दैट, राइट, विदाउट इवन रियलाइजिंग। बट अगर आप लेट्स से कोटक महिंद्रा बैंक को समझना है, ठीक है। अब हम में से मैक्सिमम लोगों को तो एक्सेस नहीं होगी इस रिपोर्ट की, बट ट्रेंडी लाइन में जाओगे तो आपको 2-4 रिपोर्ट मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल्स में कई बार मिल जाएगी, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं वो पास ऑन कर देंगे। अगर आप किसी बैंक में काम करते हो जहाँ पे आपको ब्लूमबर्ग टर्मिनल एक्सेस है, तो फिर नेचुरली बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी, राइट। तो आपके पास अगर 10 रिपोर्ट आ गई, 5 रिपोर्ट आ गई एक कंपनी में, तो आपको स्ट्रक्चर पता चलता है कि इस कंपनी को इवैल्यूएट करने का फ्रेमवर्क क्या है, बैंक्स को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, एमसीज को कैसे करते हैं, व्हाई इंश्योरेंस आर नॉट इवैल्यूएटेड ऑन पीई, राइट, व्हाई बैंक्स के लिए पी बाई बीवी का मतलब होता है, व्हाई आईटी के लिए पी बाई बीवी इज ए नॉनसेंस फैक्टर, व्हाई आरओसी आरओई फॉर एन सर्विसेज कंपनी एसेट लाइट बिजनेस इज ए नॉनसेंस फैक्टर, राइट। वो सारी चीजें आप जब अब ये रिपोर्ट्स को बार बार पढ़ोगे तो इंडस्ट्री की फील आएगी, क्योंकि पीयर कंपैरिजंस भी रहता है कई बार इन रिपोर्ट्स में, और प्लस उस इंडस्ट्री स्पेसिफिक नुआंसेस आपको समझ में आएंगे। जैसे इंश्योरेंस का तो बहुत ही यूनिक वैल्यूएशन फ्रेमवर्क है, 99% लोगों को तो समझ में ही नहीं आता है, right? तो इन रिपोर्ट से आपको फ्रेमवर्क समझ में आता है, डेटा पॉइंट समझ में आता है। दूसरा, आपको टाइम सीरीज समझ में आती है। तो कई बार आप ये भी एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। व्हेन आई वाज यंग आई हैड टाइम, मैं कई बार ना रिपोर्ट्स को मैं पीछे जा करके देखता था कि इसने 1.5 साल पहले क्या बोला था, उस समय कितनी प्राइस थी, क्या था। सी यू वांट टू एनालाइज कि व्हाट डिड दे से एंड व्हाट हैपेंड, नॉट टू जज दैट रिसर्च एनालिस्ट पर से, बट जस्ट टू लर्न मोर अबाउट हाउ मार्केट्स वर्क। तो मैं इसमें प्रिंस अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। 2007-8, मतलब माइट बी वेरी यंग, मतलब आई थॉट आई वाज स्मार्ट बट श्योरली आई वाजंट। मुझे याद है कि एसबीआई पे कुछ उसमें 2000 या 3000 रुपए का स्टॉक चलता था, या 2500 रुपए का था, और सारी के सारे सब बड़े बैंक्स ने रिपोर्ट दे रखी थी 3600 की, ठीक है। और 25-2600 था, फिर कुछ मेजर क्रैश आया, वाइडर ऑल्सो बैंक स्पेसिफिक ऑल्सो, और वो स्टॉक कुछ 1200 रुपए का हो गया। तो मैं तो खरीदता रहा अपना रिटेल में, अरे वाह, वो तो सारे सब लोगों ने बोला है 3600 जाएगा, ये तो 2500 से 1200 आ गया, हर महीने सैलरी आ रही है, हर महीने और खरीद रहे हैं। एग्जैक्ट 1.5 महीने बाद वो सारे के सारे रिसर्च एनालिस्ट ने नई रिपोर्ट्स निकाली एंड न्यू टारगेट 2000। तो देन यू सडनली रियलाइज दीज टारगेट्स आर नथिंग बट CMPs plus another 30%. That's it. That's their way of saying buying. वेरी रेयरली यू विल, आप हमेशा देख लेना, सीएमपी प्लस 20% पे वो मोटा मोटा दे देंगे, क्योंकि दैट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ निफ्टी, दैट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एनी बाय। तो ये रिवर्स कई बार कैलकुलेट होता है कि ऑब्वियसली यू आर पॉजिटिव गंगो अबाउट इट। वेरी रेयरली यू विल सी बाय टारगेट्स विथ 100%। आई मीन एसएमई की बात नहीं करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द लार्ज कैप्स एंड सेनर वर्ल्ड, राइट।
तो वहां पे 100 रुपीज का स्टॉक है तो 120 का टारगेट दे देंगे, 130 का दे देंगे, 115 का दे देंगे। तो दीज आर मोर लाइक एन इंटेंशनल, क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट रादर देन ए मैथमेटिक्स अबाउट इट। क्योंकि उसके पीछे बैक में एक एक्सेल है, उसमें दो एजम्पशन चेंज करोगे कोई भी टारगेट प्राइस आ जाएगी, फर्क क्या पड़ता है। तो आपको उसको डेटा पॉइंट्स के लिए, आर्गुमेंट्स के लिए, स्ट्रक्चर के लिए पढ़ना है, बहुत यूजफुल है। बिना रिसर्च रिपोर्ट पढ़े आपको समझ में नहीं आएगा। एक लेवल और बता रहा हूँ कि अगर कोई आदमी बिल्कुल ही सिंसियर है लाइफ में, तो वो खुद भी रिसर्च नोट लिखने की कोशिश करे, मॉडलिंग करने की कोशिश करे, उसके बगैर चीजें नहीं समझ जाएंगी। बट उसको अगर हम क्विक बाइट्स के सेंस में देख रहे हैं कि हमें 30 सेकंड के अंदर एक स्नैप जजमेंट लेना है, गोल्डमैन ने बोला एचडीएफसी लिया, खरीदो, अगर वैसे करना है देन ऑब्वियसली दैट्स वेरी डिट्रीमेंटल फॉर योर फाइनेंशियल डिसीजंस। संदीप, थोड़ा ये मतलब टॉपिक से हो सकता है अलग हो, बट एक नॉर्मल रिटेल, मैक्सिमम अपनी ऑडियंस रिटेल ही है, तो बेसिकली जैसे कोई आरए की सर्विसेज लेते हैं, ठीक है, ये पब्लिक डोमेन में जो फ्री में या टेलीग्राम में आ रही हैं वो एक आपको मतलब ब्रॉड व्यू दे देते हैं, बट आप एक स्पेशलाइज सर्विसेज किसी की पे करके ले रहे हैं, तो दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। तो आपको लगता है कि दैट इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट? और इफ यस, तो उसका बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं? मान लो कोई अच्छा आ रहे हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो हाउ वन कैन पोटेंशियली बेनिफिट द बेस्ट फ्रॉम इट? सी, अगर आरए से आप फंड मैनेजमेंट करा रहे हो तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर है कि आप स्मॉल केस या कोई वो है। और मैंने फ्रेंकली प्रिंस कभी यूज नहीं किया है, और ना मैं ज्यादा, मतलब मैं लोगों को जानता हूँ, बट आई हैव नॉट सीन इनफ टू प्रॉब्ली गिव ए गुड आंसर, बट आई एम स्टिल गिविंग माई टेक ऑन इट, राइट। तो अगर आप फंड मैनेजमेंट के सेंस में कर रहे हो तो स्मॉल केस और इन सब में काफी बेटर प्लेटफॉर्म है, मच लेसर फीस में। बट आरए कई बार ऐसा करता है, स्पेशली आप यंग हो ना, तो अगर आपको इंटरेक्शन का मौका मिल रहा है, उससे आपको लर्निंग आ रही है, माइंडसेट चेंज हो रहा है, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। सिर्फ डायरेक्ट इक्विटी करने का एक ही बेनिफिट है, नुकसान तो बहुत है, सबको पता है कि वी विल ऑलवेज मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स एंड प्रोफेशनल गाइस कैन ऑलवेज डू बेटर। हम फाइनेंस में हमेशा हमें बहुत इनर्सिया रहता है ना, पे करने के लिए आधा परसेंट, 1%। मतलब इस पे काफी पॉपुलर जोक्स हैं। लोग बोलते हैं ना, डॉक्टर के पास तो नहीं बोलते ना कि गूगल ने मुझे ये सारी, सर ये दवाई दे दो, ये इंस्ट्रूमेंट्स दे दो, मैं खुद ही अपना ऑपरेशन करूंगा। बट फाइनेंस में सबको लगता है कि मैं कर लूंगा खुद से, राइट। एक इनहेरेंट बिलीफ है। मोर पीपल बिलीव दैट दे कैन डू बेटर इन फाइनेंस देन इन एनी अदर प्रोफेशन। आप किसी से भी पूछो, हाँ ये ऐसे से करेंगे और ऐसे करेंगे और ऐसे हो जाएगा, राइट। दैट्स हाउ पीपल थिंक अबाउट फाइनेंस इंडस्ट्री, बट दैट्स ऑब्वियसली नॉट ट्रू, राइट। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट इज ऑलवेज बेटर, बट प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ एक ही रिस्क है कि आपकी खुद की लर्निंग काफी कम होती है। क्यों? क्योंकि आपको बस रिटर्न्स दिख रहे हैं एंड दैट इज ओके। तो मैं बार बार कहता हूँ कि इफ पर्पज इज टू मेक मनी, then nothing like professional management, and life is more than money, and life is more than financial industry. But for anybody who wants to evolve as an investor, or who is seeing a career here, or who just love this as a matter of hobby, most people love it matter of hobby, क्योंकि पार्ट गैम्बलिंग, पार्ट रिसर्च, पार्ट फन, पार्ट बिजनेस, मतलब इंटरेस्टिंग एरिया है नेचुरली, इसीलिए इतने सारे लोग इसमें लगे रहते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से कर रहे हो तो डायरेक्ट इक्विटी और आरए एक अच्छा बंदा है जो आपको अपनी थॉट प्रोसेस बता रहा है, बेसिक वाली हाइजीन चीजें बता दे रहा है, तो देन नेचुरली दैट इज हेल्पफुल। बट बिना मतलब प्रिंस, प्रॉब्लम क्या है कि इतने सारे एक्सट्रीम कैरेक्टर्स हैं दोनों साइड में, मतलब आउटराइट फ्रॉड। सी, फ्रॉड इज, व्हेन आई से फ्रॉड, आई डू नॉट मीन बाय बैड रिटर्न्स। मैं इनफैक्ट इस कॉल में ही एक लिसनर है, उनको मैं कुछ दिन पहले ये समझा रहा था, ही वाज टॉकिंग कि वो बंदा फ्रॉड है। मैंने कहा फ्रॉड मींस व्हाट? बोला उसने ये स्टॉक बताया था, वो 40% गिरेगा, 50% गिर गया। मैंने कहा आप बताओगे गिर जाएगा तो वो फ्रॉड हो गए क्या आप? Fraud is not based on investment return. Fraud is in terms of hidden incentives. Fraud is in terms of mis-selling of services. Fraud is in sense of front running the positions, right? पहले पोजीशन बना ली, फिर पब्लिक को दिला दिया, फिर पहले बेच दिया, फिर पब्लिक को बताया नहीं, ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट। तो उस तरीके के काफी बैड कैरेक्टर्स हैं, तो इसलिए जनरल एडवाइस देना तो प्रिंस काफी टफ है। बट प्रोफेशनल इज ऑलवेज बेटर देन, आई मीन, अगर आपको नहीं पता है, and if you can get into a setup which is being run by better people, then that is always good. तो संदीप, एक मतलब टू क्लोज, बेसिकली एक इस पे जो टॉपिक के अराउंड क्वेश्चन है कि अभी इसको एज अ कंसर्न लेने के बजाय अपना रिलैक्स करने का है, और
I mean, necessary basis there, one to eat, one should not be selling नहीं and नहीं, going. अच्छा यू आर टॉकिंग अबाउट ये हिंडनबर्ग की जो ये एक्सपोजे आ रहा है, Right, इसमें right, मंडे को right, क्या right, करना है? right. पॉपकॉर्न खरीद लीजिए और चाय ही पीजिएगा मॉर्निंग में, और क्या करेंगे? बैठ जाइए। जस्ट होप इट विल बी एंटरटेनिंग, नथिंग विल हैपन, व्हाट विल हैपन? इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है, राइट? एक कंपनी में एक्सपोज कर भी दिया, 20% गिर भी गया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? लास्ट टाइम हम लोग पैनिक मोड में इसलिए थे, देर वॉज एन एक्सटेंडेड आर्ग्यूमेंट इन सेक्शन ऑफ मार्केट दैट इट कैन वीकन द पॉलिटिकल लीडरशिप, एंड अगेन राइट रॉन्ग पे नहीं जाते हैं, उस वजह से इतना बड़ा रिएक्शन था, एंड इट वाज अ बिग हाउस। अनलेस फिर उस पे अटैक करते हैं, उसमें भी अब क्या होगा, इट्स अ नॉन इलेक्शन सीजन, हु केयर्स? तो अगर मैं प्योरली देखूं तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ इम्पैक्ट आने वाला है। दूसरा क्या है कि एक होता है नोन अननोन्स और एक अननोन अननोन्स, तो इस बार वो इंडिया वाले सब बोलेंगे आड़ दो। ठीक है, इसको देखा हुआ है हमने, राइट? तो अब नॉवेल्टी फैक्टर खत्म हो गया है, सबको पता है हिंडन में क्या होता है, ये सॉर्ट होता है। इनफैक्ट लोग उसको फोर्स फिट करने की कोशिश करेंगे कि पिछली बार कुछ नहीं हुआ था तो इस बार भी नहीं होगा, राइट? विच इज ऑब्वियसली रॉन्ग आर्गुमेंट, राइट? आउटकम कुछ और भी हो सकता है, बट क्या हो जाएगा? अनलेस आपका बिल्कुल डायरेक्टली पोर्टफोलियो स्टॉक है, देन प्रॉब्ली यू नीड टू टेक अ डिसीजन, बट अदरवाइज जस्ट हैव फन। मतलब इट्स गुड एक्चुअली, मोर कंपनीज शुड डू इट, इट्स गुड फॉर द सिस्टम। इस पे प्रिंस वही वाली बात है, सही बताने। सी, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इन्वेस्टर कम्युनिकेशन और मार्केट्स कम्युनिकेशन में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। एक बहुत बड़ा मिथ है एक इन्वेस्टर क्लास के माइंड में कि वी आर ड्यूटी बाउंड टू ऑलवेज टॉक पॉजिटिव अबाउट कंपनीज। इनफैक्ट मुझे आज से 3 साल पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक बंदे ने लिटरली मेरे को, लाइक ही वाज लिटरली पाउंडिंग अपॉन मी कि हाउ कैन यू टॉक नेगेटिव अबाउट इंडियन कंपनीज, तुमको शर्म नहीं आती है? मैंने कहा होल्ड ऑन बॉस, मतलब उसको ये लग रहा था कि एज ए कंट्री मैन वी शुड ऑलवेज टॉक नाइसली अबाउट आवर ऑल आवर कंपनीज, हम नेगेटिव क्यों बोले? हम जैसे होता है ना कि आप अपने बच्चे के, मैंने कहा भाई यू आर सपोज टू टॉक critical things even for your kids, forget about anyone else, right? Who can be more important than your kids? तो उस तरह की बेसिक हाइजीन आर्गुमेंट्स पे नहीं जाते हैं। मतलब आई एम होपिंग दैट पीपल आर nuanced to realize that critical views, negative informations are always welcome, more so इस दुनिया में जिसमें ब्रोकर्स का भी इंसेंटिव्स है, एएमसीज का भी इंसेंटिव्स है, सबका इंसेंटिव है कि सिस्टम में प्राइसेस ऊपर जाएं, और हमारा खुद का भी है। हर आदमी को नोशनल वेल्थ चाहिए। ये अलग बात है कि सब अमीर हैं तो कोई भी अमीर नहीं है, राइट? ऑन रिलेटिव टर्म्स इट रियली मींस नथिंग, बट नोशनल वेल्थ सबको चाहिए, राइट? तो एक नेचुरल इंसेंटिव है इन्फ्लेशनरी, वेदर इट इज नॉर्मल इन्फ्लेशन और एसेट इन्फ्लेशन। तो उस सेटअप में कोई भी चीज आपको क्रिटिकल व्यू बता रही है विच कैन ब्रिंग डाउन, विच कैन ब्रिंग सम सैनिटी, दैट शुड बी वेलकम। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव प्लीज, यू आर वेलकम, but my hunch is it it will be a non-material event and probably nothing, but why even guess? Let's see what they say. एक फनी स्टेटमेंट है, दे सेड समथिंग सून कमिंग इंडिया, which can be seen two ways. One, they are saying hello India, I'm telling you we are coming. One section in Twitter probably seeing it as a threat to India or this thing, depending upon किस सेंस में बंदे ने लिखा है। आई मीन लेट्स नॉट गेट इनटू टू मच डिटेलिंग, बट आई पर्सनली सॉ इट मोर लाइक हेलो इंडिया, आई एम कमिंग अगेन काइंड ऑफ ए थिंग। आई एम लाइक आ जाओ भाई, बताओ मंडे को क्या कहना है, देखते हैं। Right, Sandeep. So quickly, Kaushik, you have any question or short input? I'll be closing after that. And Sandeep, anything more to the topic? No, I'm good. I mean, we can take few speakers, just more like their take on it. Maybe 1 minute. Questions पे बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं. But Manish, Ades, anyone else wants to come as a speaker? Sure. Thanks, Prince, for the opportunity. So मुझे ये पूछना था, like a couple of like I was going through your Twitter last time when we spoke. उधर मुझे ये समझना ट्राई कर रहा था, like on what is your kind of a filtration process. मतलब I am able to understand you look at numbers in the story and then connect it, but if you can elaborate it, it will help me a lot. यार कौशिक, मुझे लगा कि आप मुझसे ज़्यादा seasoned हो. You are full time into it, so I would have thought me asking this question from you rather than other way around. But किसी और दिन करते हैं, मतलब आज टॉपिक पे छोड़ देते हैं। Well, I Right. don't mind answering it, Sure, but I sure, just find it very superficial for me to answer it. I'm no big investor that I should answer this. sure, sir. Next time I'll take it. Sure. Right. I think That was one or two thanks. questions, if
possible. So one speaker, Krishna, yeah, you can unmute and ask, and then Kevin also I'm trying. Sir, according to you, what some of the websites or YouTube channel we should follow to have our better understanding about markets? As I was really inspired by your depth of knowledge. So, unlike most of you, I took literally 2 decades to get this. So, this is not brilliance. This is just more amount of time. So, naturally, nothing can beat that. आप ज़्यादा एफर्ट डालोगे तो ज़्यादा डेटा आपके पास आ जाएगा विच मे लुक लाइक नॉलेज और विजडम टू अदर्स. बट शॉर्ट आंसर, मैं मतलब बहुत सारा कंटेंट है, बट बेयर मिनिमम आप ये कर सकते हो कि लार्ज कैप इन्वेस्टिंग में आप जा रहे हो तो ट्रेंडी लाइंस में जाकर के रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ो. ठीक है. फिर इसके अलावा जितने भी अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली समथिंग लाइक रिदम देसाई, राइट. I wish I can use name of Shankar Sharma or Devina Mehra, but I somehow like no longer respect them. So sorry, can't take their names. But I always like their views because they bring the negative perspective. They used to bring actually. They were always critical about India's story most of the times. The kind of takes which you want to understand. I mean, you just don't want to listen to Rakesh Jhunjhunwala and the money all the time, right? तो उस तरीके के बड़े इन्वेस्टर्स का जो उनका जो एक्सपीरियंस है ना, वो निचोड़ में है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, राइट. ग्लोबली भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो कि आपको वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में बताती हैं कि मनी मार्केट्स क्या हैं. तो मैं मतलब मैं थोड़ा बड़ा आंसर दे रहा हूँ, आपको शायद स्पेसिफिक चाहिए. बट सबसे पहले पूरा फाइनेंशियल मार्केट्स क्या है, डेट्स क्या है, गोल्ड क्या है, इमर्जिंग मार्केट्स क्या है, ये सारी चीजें अगर पता है और आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हो तो रिसर्च रिपोर्ट्स, सीएनबीसी मार्केट आर्टिकल्स, जितने ज्यादा इनफैक्ट इंटरव्यूज पढ़िए सारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के. सो दे कीप ऑन टॉकिंग. वो आपको लगेगा कि सेम बातें बोल रहे हैं बट वो किसी स्टॉक्स के बारे में जब बात कर रहे हैं ना तो आपको उनके आर्गुमेंट्स बन जाते हैं. और आजकल काफी सारी पॉडकास्ट चल रही हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप किस पोर्टफोलियो सेगमेंट में हो, राइट. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई. बट एक सिंपल सी चीज रखिएगा, ये देख लीजिए कि बंदा अगर कंटिन्यूसली पॉजिटिव बोल रहा है तो अवॉइड लिसनिंग टू सच पीपल, बिकॉज वो आपको लॉन्ग रन में हार्म ही करेगा. ट्राई टू फाइंड आउट पीपल हु कैन टेल यू व्हाट कैन गो रॉन्ग. That will help you more than people who are always telling you what will go right. मैं इस पे कुछ मतलब ज्यादा भी डाल दूंगा. मैं ऑन स्पॉट आपने पूछ लिया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है. बट आप और पॉइंटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हो. मतलब ट्वीट कर दीजिएगा, जैसे भी कर दीजिएगा कि किस सेंस में आप कंटेंट पूछ रहे हो. बट रिसर्च रिपोर्ट्स तो बिल्कुल, मनी कंट्रोल और जितने मार्केट इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरव्यूज है. रिदम देसाई पर्सनली काफी अच्छा मैक्रो व्यू रखते हैं. उनके सारे आप इंटरव्यूज लास्ट 5 years 10 years के देख डालिए, यूट्यूब में काफी मिल जाएंगे आपको. Okay, sir. Thanks a lot. And Sandeep, even a forum that goes by the name of Value Picker is good, and there are few This channels. is actually very good. Thanks, Prince. So you say, I mean, you probably know more than me, Prince. So can you add answer to that Uh, question? Value so, Picker is so, amazing forum. Thanks for highlighting. so there is one channel SOIC that also does good business evaluation and pointers. You can see. So SOIC is one channel, and these kind of sessions are always available on my YouTube also. So that is also one source potentially. उसके अलावा स्क्रीनर पे भी आई मीन फॉर गोइंग थ्रू दी फाइनेंशियल्स और उसमें बाकी सारी चीजें आपको मिल जाती है इफ यू वांट टू स्टडी एनुअल रिपोर्ट्स एंड एटसेट्रा कॉन कॉल्स ग्रेजुअली शुरू करें बट वैल्यू पिकर इज वन फोरम वेयर इन यू विल फाइंड ऑल काइंड ऑफ व्यूज ऑन सिंगल तो उसमें आपको लगेगा कि पॉजिटिव बोल रहा है क्यों बोल रहा है और उसमें कोई कमी बता रहा है नेगेटिव्स बता रहा है क्यों बोल रहा है तो दैट वुड बी अ ग्रेट लर्निंग पॉइंट आई गेस तो वैल्यू पिकर इज वन गुड फोरम टू स्टार्ट विद. एक्चुअली प्रिंस, आपने बहुत सबसे ज्यादा यूजफुल रहता है. मैं ये सॉरी एसओईसी ये जितने न्यू एज प्लेटफॉर्म्स हैं मैं कनेक्टेड नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता है. बट आई ऑलवेज हियर गुड थिंग्स अबाउट देम. बट कॉन कॉल्स आप सुन सकते हो. सबसे बढ़िया मतलब होता है ना, आप ट्रैवल कर रहे हो अपने बस जस्ट स्पीकर लगा के सुन रहे हो या स्क्रिप्ट की तरीके से पढ़ ले रहे हो. तो जो भी कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट दे रही है, साल में 2 बार कॉन कॉल कर रही है, 4 बार कर रही है, एंड लेट्स टॉक अबाउट मेन बोर्ड कंपनीज फॉर नाउ. तो वहां पे अगर आप 4 बार पढ़ लोगे ना तो उसी में ही आइडिया लग जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं वो इन्वेस्टर्स भी नुआंस्ड होते हैं, उसमें पोजीशन लिए होते हैं, थिंग्स व्हिच मैटर्स. ऑब्वियसली उनके बायसेस वगैरह आप हटा दो तो वो क्या क्वेश्चंस कंपनी से पूछ रहे हैं, कंपनी क्या आंसर कर रही है, मार्च में क्या बोली थी, अभी क्या बोल रही है,
राइट, 1 साल पहले क्या बोल रही थी, तो आपको वो बहुत अच्छे से होता है ना कि पूरा फुल आपकी स्टोरी आपके आंखों के सामने आ जाएगी। तो वो सबसे बढ़िया तरीका है कॉन कॉल्स पढ़ना, more than investor PPT or annual reports. Con calls is more like a uh, uh, what do you say, press conference, right? कि जिसमें टू एंड फ्रो हो रहा है, तो हेल्पफुल होता है। Right, Sandeep. So, Kevin, you can unmute and ask your question. Before that, I Okay. would request Thank, Jitin. thank you, sir. Sir, my question is for new people like me. Sir, जैसे कि पुराना वाला जो हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, तब तो मेरे जैसे इन्वेस्टर मार्केट में थे भी नहीं, उनके लिए है मेरा कौन से सिचुएशन में क्या इफेक्ट मार्केट को पड़ता है, जैसे ये अगर म्यूचुअल फंड वगैरह का हुआ तो कितने टाइम तक इफेक्ट रहेगा, और दूसरी जो हमने इन्वेस्ट कर रखा है दूसरे शेयर्स में उनको क्या हो सकता है। सर मुझे ये सी थोड़ी सी इफेक्ट के बारे में कुछ अगर बता सके तो। तो प्रिंस, इसका क्विक आंसर दे देता हूँ। केविन, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कि तुम बोल रहे हो कि 2 साल पहले तुम थे ही नहीं दुनिया में, मतलब मार्केट में, तो तुम कितने यंग हो गए। मुझे यहाँ तो लोग 20-20 साल से बैठे हुए हैं। शॉर्ट आंसर है कि अगर 10 दिन का पर्सपेक्टिव से बता रहे हो, काफी हाई चांस है। इट इज वेरी रिस्की इन फाइनेंस और मार्केट्स टू ट्राई टू गेस व्हाट विल हैपन विदाउट इवन नोइंग द इन्फॉर्मेशन। बट इफ यू स्टिल वांट अ गन पॉइंट काइंड ऑफ एन आंसर कि नहीं कुछ तो बोलो, 10 दिन के बाद नो वन विल बी इवन टॉकिंग अबाउट इट। सो जो भी होगा वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का होगा, बट बेटर वेट फॉर व्हाट दे हैव टू से एंड देन गेस व्हाट विल हैपन। बट दीज आर नॉन इवेंट्स इन वाइडर स्कीम ऑफ थिंग्स। That's all I can say, Kevin. Right, Sandeep. So I also see Jiten, sir, not sure is free or not. So, sir, in case if you're free, I would love to hear your views also on the topic or maybe in general. So, Sandeep, I think I have to scan the comments once, otherwise, I have taken the questions. Hello. I can't hear anything actually. I don't know. Yeah, hi, sir. How are you? Long time. Good, good, good. Yeah. Tell me. I just Uh, joined, so I don't know what is, so, but sir, I just see. yeah, we had a focused discussion on Hindenburg. We discussed कि क्या करता है, क्या बेसिकली ये लास्ट टाइम क्या हुआ था, और पोटेंशियली इस बार जो अभी उनका ट्वीट आया है तो पोटेंशियली क्या हो सकता है। तो इन सच केसेस आप अपने आप को कैसे, मतलब क्या व्यू रखते हैं और क्या आपका प्लेसमेंट रहता हो। ऑल्दो वी ऑल नो कि शॉर्ट लिव्ड इवेंट रहते हैं, बट फिर भी इस सेंस में कैसे। To be honest, I don't focus on it at all because see, I know that across WhatsApp group there is speculation. ये group होगा, वो group होगा. I mean, uh, doesn't matter in long term investing is what I think. मतलब पिछली बार भी हुआ था तो I was obviously I I said that publicly also that we are not invested in any of the stocks of groups which are like very highly leveraged or जहाँ पे if there is any semblance of a corporate governance issue या कुछ तो generally तो uh, not affected by these things because of the style of investing we do. So and any which way, I mean, I don't worry. If you know, if at all because of this, you know, some stocks which are good fundamentally and where we don't see a corporate governance issue, and if they fall because of this, I think it's always opportunity. But I mean, frankly, we just don't focus on any of this. So, Prince, Right. just for disclaimer, I never bought or sold a single Adani shares in last 7-8 years because that's outside of my investable universe. Right, wrong doesn't matter. But I appreciate the valuation, especially now in many of those companies, including Adani Ports. So as Jitin sir is saying, especially अगर आपके investable universe में है ही नहीं, तो तब तो और भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना.
And the only thing is, you as a market participants, you just want to read through and just understand what is happening. But अगर आपके direct portfolio stocks में नहीं है, तो how does it even matter? True that. So Jiten sir, lately we had some taxation. Obviously, थोड़ा topic से अलग जा रहे हैं because topic तो बहुत ज़्यादा और discuss करने का नहीं है. तो जो taxation के lines पे थोड़ा market में volatility रही थी, वो भी settle हो गई है. But broadly, do you see anything changes on a bigger scale with that, or अभी we are poised, और अभी बायंट मार्केट चलता रहेगा? कैसे, क्या कुछ मतलब अभी कुछ स्टांस में आपका, जो हमने लास्ट बात की थी, कुछ चेंज है, या सिमिलरली वही बॉटम्स अप अप्रोच चल रही है और वैसे ही आप अपने आप को प्लेस कर रहे हैं? Yeah, I mean, nothing changes. So one thing is certain, uh, taxi is going up and we going up. So that is certain. Uh, uh, I think, I mean, I kind of expected that taxes will rise, and I think they will rise further in the future. I don't know when. We have to be prepared for that. Uh, and that's a certainty. I mean, it's not that in India it's happening across the world. So you have to. I mean, yes, there are a lot of arguments that they get a lot of facilities and we don't get anything and all that. But that's a never-ending debate. But if you look at it, I think is that we are not taxed that higher compared to the other part. Of course, they have a lot of facilities, but it is a fact, and the think tank and uh, will always look at compare that our taxes are lower and all that. But yes, I think taxes will still go further up, regardless of which government uh, comes in the future also, or something like that. But so I expect two changes which will happen sooner or later. One is, I think, long-term gains will go to 2 years, as is happened with all other investments. So I think for equity also, I think it will go for 2 years. That could be one thing which will happen, or maybe the first thing which will happen. And then again, there will be, maybe down the line, again there will be a hike in the long-term capital gains, to, let's say, 15% or something. I don't know. I mean, how much time it will happen, but these are the two things which I see happening. Uh, uh, and as far as investing goes, nothing changes. It's just that obviously we have to pay higher taxes. Uh, so just focus on earning more or spending less. Right, sir. So we got one speaker, AM, if he has any question, and I also see Deepak sir. So just in case he's free and want to chip in around the topic, I would See, appreciate. I just hi everyone. I was refrained from actually investing in SME IPOs and all, primarily because it was very difficult to find out the history of the promoters and any cases against these promoters and all. So I just wanted to know from everyone that is there any tool that you use to see, for example, Save Risk, Prop 42 kind of tools are available for corporates, but it's not available for retail. So, where you can actually search whether those promoters or directors have any history cases against and things like that. Whether you have any tools, such tools to um, uh, help retail investors to find out these kind of issues. So Jiten sir, Sandeep sir, any answer to this? I mean, यार ये प्रिंस इस पे लूप में ये क्वेश्चन आता है और लूप में आंसर चला देना चाहिए वीडियो रिकॉर्डिंग. एम फॉर सम अदर डे छोड़ दीजिए. बहुत नुआंसेस पे भी चली जाती हैं चीजें, एंड ब्रैकेट पे नहीं डाल सकते हैं, और बहुत पैशनेट व्यूज हैं डिफरेंट सेक्शन ऑफ मार्केट्स के, डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपीरियंसेस. बस इतना कह सकता हूँ कि 2018 के पहले और अभी में काफ़ी डिफरेंस है.
there is a segment, especially institutional investors, who obviously don't have monetary incentive because of lack of size, plus also because of the kind of people who were involved and are still involved in SME. उसकी वजह से एक bad branding है, which basically is giving one in lifetime opportunity for relatively cleaner companies and cleaner investors to make some super normal returns, which in a normal world would have been not possible. So there is, because of that cynicism, there is an opportunity also. Obviously, it is not easy to in cash or catch on that opportunity. So risk reward adjusted returns are much smaller than what we see, but still absolute terms में काफी अच्छे हैं. क्यों? क्योंकि ये अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग है, उसको लोग एडवांस स्टेज इन्वेस्टिंग से कंपेयर कर रहे हैं. तो दे आर मिसिंग द पावर ऑफ न्यू फंड, द पावर ऑफ one time switch from unlisted to listed, the kind of tailwinds it brings, kind of changes it brings to the mindset of the promoters, to the company, their branding. So there are many positive. Negative सबको पता है. लो स्टॉक्स हैं, डब्बा कंपनीज भी लिस्ट हुई हैं, प्रमोटर का नाम नहीं किसी को पता है, कोई इंटरव्यू नहीं पड़ा है, केवल ट्विटर पे थ्रेड बना बना करके 20 गुना हो गया है स्टॉक, 200 गुना हो गया है. आप बोल के कुछ नेगेटिव दिखाओगे तो आप पे अटैक होना चालू हो जाएगा. तो वो सब, हाँ, वो सबको पता है. उस पे नहीं जाते हैं, किसी और दिन करते हैं. ये बहुत बोरिंग हो जाता है, छोड़ Sandeep, देते हैं. sorry, I don't know whether my question was fully heard. My query was that is there any tool that you use? For example, Probe 42 कोई टूल Saveris. नहीं है इसको, जिन्होंने वर्ड्स बोल दिया स्किटल बट, इसका कोई टूल नहीं है. यू हैव टू डू वेरी हार्डकोर माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग, एंड दैट इज हाउ इट हैपेंस आल्सो. सो पहली चीज आप, which is basically you drop mails to company, you ask questions, you create a fellow minded group जिन्होंने ऐसा काम खुद भी कर रहे हैं, उनसे नोट्स एक्सचेंज हो रहा है. तो बिल्कुल हार्डकोर जो ग्राउंड लेवल स्काउटिंग होती है ना, जिसको स्पोर्ट्स स्काउटिंग बोलते हैं, उस स्टाइल की इन्वेस्टिंग है. यू वोंट गेट दोज डेटा पॉइंट्स ऑन गूगल. नेचुरली ये सारी एसमी कंपनीज पे बहुत प्रेशर डाल रहे हैं इन्वेस्टर्स. सो यू विल सी मोर एंड मोर कंपनी coming up with research, investor PPTs, doing con calls, doing quantitative results. Sorry, Sandeep. I think my specific question was that for organizations there are tools like Probe 42 and Saveris kind of tools which search the history of the directors, उनके against cases है नहीं या मिलेगी कुछ. इसका. अच्छा सॉरी, इसकी तो हिस्ट्री इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आरओसी रिकॉर्ड्स के अलावा तो कुछ होगा नहीं, और ये इतनी छोटी कंपनी है कि इनकी मीडिया कवरेज होगी नहीं. तो आपको सेकेंडरी रिसर्च करके नहीं कर पाओगे, आपको ग्राउंड पे प्राइमरी रिसर्च कराना पड़ेगा ओके, कॉन्ट्रैक्ट्स और कनेक्ट्स के थ्रू. ठीक है, थैंक यू. इतनी छोटी कंपनीज है ना, उनका मतलब आपको क्या कहीं क्रंच डेटाबेस पे फंडिंग होगा नहीं, तो वहां पे नहीं होगा. डायरेक्टर्स प्रोफाइल, इनफैक्ट उसके लिए सबसे सिंपल है कि आप डीआरएचपी पे जाइए, इनफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बट उससे अगले लेवल की आपको सेकेंडरी रिसर्च करनी है तो वो नहीं मिलेगी. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट केवाईसी of the promoters or the Yeah, directors or PMCs. in my organization, I have, because I can't use that organization's name, but that organization provides a tool which I don't know how they collate, but they collate all the legal cases against the promoters and Okay, things. But I now I cannot understood. use Okay, that so for you a might be in retail that purpose. हाँ. static client onboarding teams, or you would have seen. So मैं भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स में काम करता हूँ, तो हमारे पास भी वो डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल पेड होते हैं, जिसमें आप क्लाइंट्स का पूरा लीगल वो कर सकते हैं. इंडिया में भी वो डेटाबेसेस हैं. इनफैक्ट जब ये डीआरएचपी बनता है तो उसमें एक लीगल स्क्रीनिंग होती है, राइट, नॉट ओनली फॉर एसएमई, इवन ऑब्वियसली फॉर मेन बोर्ड. तो वो जितने भी आप देखोगे डीआरएचपी के एक सेक्शन के अंदर लीगल केसेस की बात होती है. नेचुरली जो डिस्क्लोज होगा, जो उनके डायरेक्ट नाम पे होगा, वो सारा चीज वहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट हो जाएगा. बट उन केसेस के, अगर आप पुरानी कंपनी है तो नेचुरली वो डीआरएचपी तो 5 साल पुराना हो चुका होगा, तब तो अपडेटेड नहीं होगा. तो इंडिया में श्योरली लीगल डेटाबेसेस हैं. मैं चेक करके बता सकता हूँ अगर किसी को यहाँ लिसनर उसमें हो. बट इंडिया के डेटाबेसेस उतने स्ट्रांग नहीं होंगे जितने वेस्टर्न वर्ल्ड के होंगे, क्योंकि अभी भी यहाँ पे ये सारी सर्विसेज बहुत ज़्यादा लोग पे नहीं करते हैं. तो अनलेस पीपल पे, हाउ वुड यू एक्सपेक्ट दोज डेटाबेसेस टू बी गुड. And there are I think government websites also from where you can get some of these information. आपका question मुझे समझ में आ गया. Let me think about it, and I'll surely check with some of the LMs. They will know it, and I'll DM you. Thank you. Thanks. Jiten sir, any input from you, or
उसके अलावा सर एक क्विक क्वेश्चन मैं अर्निंग्स पे आपसे पूछना चाहूंगा, इफ यू आर ओके। सो बेसिकली अभी तक जो अर्निंग्स आई हैं तो ब्रॉडली क्या एक क्वार्टरली अर्निंग्स जो अभी तक रिलीज हो चुकी हैं 1600-1700 कंपनीज की, उसमें जो आप यूनिवर्स ट्रैक करते हैं, तो ब्रॉडली आपको क्या लग रहा है कैसी अर्निंग्स हैं इस क्वार्टर? जितेंद्र सर? Some issue. Let me check with him offline. So otherwise, Sandeep bhai, more or less we have covered and Jiten sir also added. तो अपन wrap up करते हैं अगर सर busy हैं तो. Yeah, good to close. Thank you. Thanks, everyone. Thank you everyone for joining, and those who joined late can certainly listen to the recording wherein we discussed at length. And, before I close, one last check with Jiten sir. Jiten sir, are you there? I think he must be busy or not audible from my end. Anyways, thank you so much, guys. And we discussed around the topic at length, and I think there should not be anything which should make you anxious. And until the unless the information comes to everybody, we should not be making any decisions in haste. So certainly, you should focus on your companies. Okay, thank you. Take care.